Good afternoon and a very warm welcome to all the participants in this 19th series of franchisee webinar. The prime objective of this webinar is to provide valuable insight into the service franchise industry, helping entrepreneurs, investors, and business owners understand the opportunities and challenges within the sector. Key goals includes understanding the service franchisee model, market trends and opportunities, franchisee selections and investment strategies, operational best practice, challenges and risk management, franchisee success stories. This webinar aims to equip attendees with the knowledge and tool needed to make informed decisions and succeed in the service franchise industry. Today we have Ms. Kunu ma'am as our speaker. As a renowned franchisee market expert, Ms. Kunu ma'am brings a wealth, knowledge, and insight into the ever-evolving world of franchising. With a deep expertise and industrial experience, we are excited to gain valuable perspectives on market trends, growth strategies, and the key to building a successful franchisee business. Thank you for joining us, Ms. Kunu ma'am. We look forward to an engaging and insightful session with you, ma'am. Thank you so much for joining us. Hi everyone and welcome to the webinar again. So prior moving ahead, I would request all of you to introduce yourself in the chat box so that I can understand from which location you are and what is the background of yours. Please everyone start introducing yourself. I've seen few introductions are already there. Welcome Chitrasen ji, welcome Saurabh ji, welcome Pramod ji. Others, please write in the chat box your current location and your profession. I'll be waiting for another 2 to 3 minutes for your introductions. So, moving ahead, हम में से काफी सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं. अगर मैं बात करूं, आप आज के टाइम पे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस, तो कौन सा बिजनेस आप शुरू करना चाहेंगे? चैट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा किस बिजनेस में आप जुड़ना चाहेंगे, किस बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहेंगे. वेलकम जितेंद्र जी, वेलकम भूपेंद्र जी, वेलकम जावेद जी. ओके, यस जी वांटेड टू डू फ्रेंचाइज. ओके, और किसी का कोई थॉट है? सर्विस बिजनेस, राधे जी, ठीक है. किस बिजनेस में आप जुड़ना चाहेंगे? कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या बिजनेस है वो? क्या शुरू करना चाहते हैं आप? और किसी का कोई थॉट है? जितेंद्र जी ऑफिस. मैम प्लीज फर्स्ट चीज के लिए ज्वाइन किया गया है, प्लीज एक्सप्लेन. ये वेबिनार है जावेद जी, वेबिनार बिजनेस और फ्रेंचाइज के रिलेटेड डिस्कशन के लिए. धीरेन्द्र जी सर्विस के लिए. ओके. प्राची जी wanted to do the business which has low investment. Okay. Okay. Am I audible to you now? Am I audible to everyone? If yes, please write yes. Okay. Okay, got it. Pramod ji, there could be a network issue at your end, I believe. So before moving ahead, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है इस वेबिनार को ज्वाइन करने का? कोई थॉट होगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ लर्निंग, या कोई बिजनेस मॉडल समझना चाहते हैं आप? आपने किसी रीजन से इस वेबिनार को ज्वाइन किया होगा, आपका क्या रीजन है? प्लीज मेंशन दैट. टिल द टाइम ऑब्जेक्टिव नहीं हमारा सेट होता है, तब तक हम उसके रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे. सो ऑब्जेक्टिव शुरू में ही हमें सेट करना पड़ेगा. प्लीज मेंशन आपके क्या ऑब्जेक्टिव है इस वेबिनार को ज्वाइन. इनकम. ओके. और किसी का कोई ऑब्जेक्टिव है? बिजनेस मॉडल फॉर एक्स्ट्रा इनकम, नो लॉस, मनी. ओके. प्रॉफिट वाला काम, बिजनेस अपॉर्चुनिटी. ग्रेट. और किसी के कोई थॉट्स हैं? एवरीवन वांट मनी फ्रॉम बिजनेस, नो ग्रोथ, नो चीटिंग. Want to know franchise brand which give good business opportunity, extra income. Okay. So we all are here to do business. So what is business? Business क्या होता है? सबसे पहले हम business के basics को ही समझते हैं. Business होता क्या है? आप लोगों के thoughts के हिसाब से business क्या होता है? One word answer if you can write. What is business from your understanding? Making money. Okay.
किसी के और कोई थॉट है? बिजनेस क्या होता है? राइट, मेकिंग मनी। Understanding business and entrepreneurship. Business is an organized effort to produce, buy, sell, or provide goods and service for profit. हम business profit के लिए ही करते हैं, to make money, to earn money, to buy, sell any product and services. And mostly अगर मैं बात करूँ in India, 70% of Indians wanted to start their entrepreneurship journey. हम जितने भी वेबिनार में लोग हैं, हम में से 70 से 80% लोग जो हैं वो खुद कोई एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करना चाहते हैं. 70% इंडियंस आर विलिंग टू, बट मोस्टली हमने देखा है कि सक्सेस रेट जो बिजनेस का है वो बहुत ही कम है. 20% बिजनेस फेल हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में. 50% बिजनेस जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं 5 years तक, और 33% बिजनेस ही टिके रह पाते हैं 10 साल. बाकी अगर मैं बात करूं 64% बिजनेस फेल हो जाते हैं. क्या रीजन होता है, क्यों बिजनेस फेल होते हैं? फ्रॉम योर थॉट प्रोसेस, फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग, व्हाई बिजनेस? वन लाइन आंसर इफ यू कैन टेल. हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बिजनेस किया भी होगा, समझा भी होगा. तो बिजनेस फेल क्यों होता है? मेन रीजंस क्या होते हैं बिजनेस फेल होने के? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स. ऑनरशिप. बिजनेस तो होलसेल ऑनरशिप है ना. लैक ऑफ सफिशिएंट फंड, या एब्सोल्युटली राइट यू आर, राधे जी. फंड्स की सोर्सिंग और फंड्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो सही नहीं हो पाता है. नो कैपिटल, lack of continuous efforts, absolutely right you are. Management, yes, could be one of the reason. Skilled manpower, yes. Weak business model, no clear revenue generation strategy. Product, service, pricing, target market, marketing through working capital, not important है. Leads depend on, क्योंकि when you're starting your business you have, जावेद जी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा आपको, आप वेबिनार में जुड़े रहें प्लीज. सो बिजनेस फेल होने के हमने बहुत सारे रीजंस देख लिए हैं. कुछ रीजंस ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं, कुछ रीजंस मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ. इनसफिशिएंट मार्केट नॉलेज, मार्केट में नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर बिजनेस की, या अंडरस्टैंडिंग नहीं हमने डेवलप की, या टारगेट ऑडियंस हमें नहीं पता है, जिससे हम बिजनेस को लॉस पे लेके जाते हैं. इनएडिक्वेट फंडिंग, जो हमने भी डिस्कस किया है, फंड्स आए, सोर्स किए, डिप्लॉय नहीं कर पाए या सोर्स नहीं कर पाए, मिसमैनेजमेंट कर दिया उस फंड्स का. पुअर मैनेजमेंट, ऑब्वियसली इनफेक्टिव लीडरशिप जो है उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है आपके बिजनेस पे. वीक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रेजेंस अगर नहीं प्रॉपर है तो कस्टमर रीच नहीं बढ़ेगी और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी. टेक्नोलॉजी गैप्स, जो मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं वो स्केलेबिलिटी में हेल्प करते हैं. अगर आपने उसे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप जाके एक पॉइंट पे रुक जाएंगे आपकी ग्रोथ. रिक्रूटमेंट चैलेंज, डिफिकल्ट टू फाइंड राइट टैलेंट. बहुत जरूरी है राइट टैलेंट को लेके आना. एग्जाम्पल देती हूँ, किंगफिशर एयरलाइंस जो फेल हुआ था वो हाई डेट और पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से हुआ था. सो द मल्टीपल रीजंस व्हाई बिजनेस फेल. बिजनेस फेल होता है तो अर्ली सक्सेस बिजनेस का कैसे आ सकता है? अर्ली सक्सेस अगर बिजनेस में मिलता है तो बूस्टर डोज की तरह काम करता है. एंटरप्रेन्योर ग्राउंड पे एफर्ट्स करना बहुत जरूरी है. एज अ बिजनेस ओनर जब तक आप ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे, आप ग्राउंड पे जाके नहीं चीजों को हैंडल करेंगे, समझेंगे, तब तक आपके लिए प्रॉब्लम एरिया बना रहेगा. बिजनेस खुद से काम नहीं कर पाता. मिथ है कि आपने बिजनेस खोल लिया कस्टमर आ जाएंगे. कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज लोगों ने शुरू भी किए हैं. रेस्टोरेंट बिजनेस खोला है, कस्टमर आएगा, यू हैव टू ब्रिंग द कस्टमर. बड़े से बड़ा ब्रांड्स, अगर मैं मैकडोनल्ड की बात करूं तो मैकडोनल्ड भी काफी लोकेशंस में बंद हुआ है. रीजन उसका ये रहा है क्योंकि वहां पे मार्केट प्रेजेंस नहीं बना पाया है. मैकडोनल्ड खुल गया, लोगों को पता ही नहीं है, तो मैकडोनल्ड चलेगा कैसे? So active involvement in business operations is very important as an entrepreneur. Local marketing and promotions आपको करते रहना पड़ेगा rigorously. Strong customer engagement and acquisitions पे आपको focus करना चाहिए. Networking अपनी बढ़ानी चाहिए, market presence grow करना चाहिए. Lenskart aggressively expansion में गया था online,
उसे ऑफलाइन स्ट्रैटेजी भी लेके आनी पड़ी to penetrate Indian market very well. It's not about only online presence, but offline presence also makes a difference. So now moving ahead, दो रास्ते हमारे पास, या तो हम बिजनेस करें या तो हम फ्रेंचाइज पाथ पे चलें. सो व्हाट इज योर टेक? आप सोलो बिजनेस करना चाहते हैं या फ्रेंचाइज पाथ पे चलना चाहते हैं? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स योर थॉट प्रोसेस एंड डू लेट मी नो इफ यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग. Okay, Radha ji wanted to move ahead with franchise. Great. Others, please. Okay, kids, crayon, preschool, self-business, franchise. Okay. Others, please. Everyone, please write down your thought process, whatever you're thinking. You should put down here. सोलो बिजनेस करना चाहते हैं, फ्रेंचाइज पाथ पे जाना है आपको? जितेंद्र जी वांटेड टू गो फॉर फ्रेंचाइज. Dr. Anamika Verma wanted to go for solo. Okay. Okay, Prachi ji is talking about, I guess, franchise only. Anyone which has less investment and more income. So more or less, we understood business के nitty-gritties, business कैसे चलता है, fail क्यों होता है, business चलाने की क्या key rules हैं, क्या success tips हैं. Now moving ahead, what is franchising? Franchising में हमें जाना तो है, पर franchise होता क्या है? What's your thought process towards franchising क्या है? जिन्हें सोलो बिजनेस करना है उन्हें भी आगे फ्रेंचाइज पाथ पे जाना है. जो इन्वेस्टर्स हैं जो फ्रेंचाइज पाथ पे जाना चाहते हैं उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है कि फ्रेंचाइजिंग होती क्या है. So in both the perspective, if I can understand what is franchising. Okay, franchising is a business model where a company, the franchisor, grants another business, the franchisee, the rights to use its brand and operating method. Royalty on the mother company equity. Okay. Franchising is replication of proven business system and granting the rights to run the business under a brand name in return of a fees. That fees is either franchisee fees or royalties, both, even both ways. सो फ्रेंचाइजिंग में एक ब्रांड है जो अपना नाम दे रहा है किसी थर्ड पर्सन को अपने एरिया में ऑपरेट करने के लिए, जिसके पीछे वो अपना पूरा विजन दे रहा है उस एरिया में चलाने के लिए, जो कि उसका प्रूवन बिजनेस मॉडल है. और इसके रिटर्न में वो एक फ्रेंचाइजी फीस और रॉयल्टीज चार्ज करता है. दैट इज व्हाट फ्रेंचाइजी इज. Even if I talk about overview of franchising in India and globally, but I wanted to understand from your side. आप बताइए, फ्रेंचाइजिंग का जब हम नाम लेते हैं तो कौन सा इंडियन ब्रांड या ग्लोबल ब्रांड हमारे दिमाग में आता है सबसे पहले जब भी हम फ्रेंचाइज की डिस्कशन करते हैं? कौन सा ऐसा इंडियन ब्रांड और ग्लोबल ब्रांड है जो कि हमारे दिमाग में तुरंत आता है? बाटा, रिलायंस, कोक, लेंसकार्ट, मैकडी, बीकानेर. ओके, अनु भाई डोमिनोज फ्रेंचाइज नहीं करता है. सागर रत्ना, मैकडोनल्ड. तो ये हमारे दिमाग में तुरंत आ जाते हैं. ये कुछ एक ब्रांड्स है, जैसे हम फ्रेंचाइज का नाम लेते हैं तुरंत हमारे दिमाग में इफेक्ट करता है. ओके, फ्रेंचाइज मतलब ये. So, अगर मैं इनकी जर्नी की बात करूं, फ्रेंचाइज इंडस्ट्री के स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, तो फ्रेंचाइज ने 25% ग्रो किया है एनुअली. 2.5 लाख से ज्यादा बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज करते हैं अक्रॉस इंडिया. 60% एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया आर फर्स्ट जनरेशन. मैकडोनल्ड जिसका हमने मेंशन किया, 40,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, 119 कंट्रीज में सर्व कर रहा है. 68 मिलियन कस्टमर एवरी डे सर्व करता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वन ब्रांड टू केटर 68 मिलियन कस्टमर्स. कैसे कर रहा है वो? फ्रेंचाइज नेटवर्क के थ्रू. वन ब्रांड हैव मल्टीपल आर्म्स. सबवे 115 कंट्रीज में कर रहा है, 36,000 प्लस स्टोर्स हैं उसके. डीटीसी के 12,000 फ्रेंचाइज आउटलेट्स हैं इंडिया में. टनिस्क और फैब इंडिया ने आउट ऑफ कंट्री भी जाके अपने फुटप्रिंट्स जमाए. हल्दीराम इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल. अगर मैं आपकी बात करूं, आपके थॉट प्रोसेस की, तो फ्रेंचाइजिंग 2025 में कैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? कैसा है 2025 में फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी? डॉक्टर बत्रा भी. यस, फ्रेंचाइज एज बिजनेस अपॉर्चुनिटी 2025 में कैसा रहेगा?
in your thought process? If you don't know, mention don't know. Excellent. Okay. So my this thumb line is franchise business is equals to smart business in 2025. फ्रेंचाइजिंग फ्यूचर क्यों है? टेक्नोलॉजी ड्रिवन एफिशिएंसी ने बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन किया है, leveraging automation, digital marketing, data analytics to reduce cost and boost growth. Scalable and proven model है, quick to scale with minimal risk, supported by tested business model. Adaptable of trends, अगर मैं बात करूँ न्यू टेक्नोलॉजीज की वजह से मार्केट शिफ्ट एक आया है जो कि मोस्टली अडॉप्ट हो रहा है मैक्सिमम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में. Ongoing support, continuous franchise training and operational assistance powered by technology. Technology के बिना things were not reaching to the places. Example है Coach24, एक जिम है जिन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करके रिमोट पर्सनल ट्रेनिंग एंड मेंबर मैनेजमेंट शुरू किया है, जिससे उन्होंने काफी तेजी से एक्सपैंड किया अपने ब्रांड को. टेक्नोलॉजी से सर्विस डिलीवरी कैसे हो सकती है और ग्रोथ कैसे मिलती है, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल विच Coach24. So you should read that model as well. That is a very good model while in service industry. If you have any confusion, anything, please let me know in the chat box. Franchising versus opening your new business. क्या difference है दोनों में? If you can write it in the chat box, benefit franchise लेने के या अपना business शुरू करने का. I would request everyone to participate and write down. रोशा कुमार जी, आप मेंशन कर दीजिए चैट बॉक्स में. Starting your own business or taking a franchise, what is better? If you don't know, mention don't know. Franchising business gives us nurtured market by brand. Absolutely right. Franchise, proven business model. Okay. Proven business model. Depend on capital investment cost. Market fit, product service, low risk. Okay. Own business is better. It gives you freedom. Absolutely right, you are. Any other thought? Okay. So brand recognition, अगर मैं franchise की बात करती हूँ, that is pre-established brand which has a market reputation. Own venture, you have to build everything from the scratch. Franchise में एक proven tested model मिलता है जिसका एक successful track record है. अपने business में आपको there will be a risk and requires trial and error. Support and training in franchise, franchisor की तरफ से आपको ट्रेनिंग, ऑपरेशनल, मार्केटिंग, ऑनगोइंग सपोर्ट मिलता रहता है. अपने वेंचर में आपको फिगर आउट करना पड़ेगा सब कुछ इंडिपेंडेंटली. फ्रेंचाइज सेगमेंट में यस, रिस्क लोअर साइड हो जाता है. अपने बिजनेस में अनसर्टेनिटी ऑफ द रिस्क इज देयर क्योंकि एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क नहीं होता दैट यू हैव टू क्रिएट बाय योरसेल्फ. Marketing, franchisor provides national and local marketing, where in own venture you have to collect the funds and infuse in the marketing. इसीलिए मार्केट में कैश बर्न्स भी बहुत ज्यादा होता है. रीजन बिहाइंड द स्टार्टअप फॉर कैप्चरिंग दैट मार्केट एरिया आपको करना पड़ेगा वो. फाइनेंशियल फ्रेंचाइजिंग में आपको लोन्स मिल जाते हैं. ओन वेंचर में डिफिकल्ट होता है फंडिंग क्रैप करना क्योंकि आपको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट पहले बनाना पड़ेगा, उसे मार्केट में टेस्ट करना पड़ेगा. परचेजिंग पावर, ऑब्वियसली बल्क सप्लायर्स आपको फिगर आउट करने पड़ेंगे अपने वेंचर में, जबकि फ्रेंचाइजी में फ्रेंचाइजर ने ऑलरेडी वो चेन रेडी की होती है. इनोवेशन अपडेट्स में फ्रेंचाइजर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स करता है, अपडेट करता है न्यू डेवलपमेंट्स. ओन वेंचर में आपको खुद से ही करना पड़ेगा सब कुछ इंडिपेंडेंटली. फेलियर रेट फ्रेंचाइजी सेगमेंट में लोअर साइड होता है क्योंकि काफी सारे निटिग्रिटीज कैप्चर कर चुका होता है फ्रेंचाइजर. अपने वेंचर में अनसर्टेनिटी अगेन होती है क्योंकि आपको नहीं पता है नया बिजनेस किस मोड़ पे जाएगा. सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन business and franchise. After this session, Rosaji, we can talk. So can anyone tell me the types of franchising? कितने types of franchising होती है?
कितने टाइप की फ्रेंचाइजिंग होती है? 2 टाइप्स, ओके। मास्टर, सिंगल, सिंगल, कोको। एरिया डेवलपर, ओके। ओफो। मल्टी यूनिट। 4 टाइप्स, okay. So there are 4 types of franchising, more or less. Yeah, people are much aware about it. Single unit franchisee, that is one person operating one unit. That's single unit franchise. Multi-unit franchisee is one person operating more than one unit. That is multi-unit. एरिया डेवलपर है, एक एरिया मिल गया है, उस एरिया में हब एंड स्पोक बनाना है। F&B सेक्टर में जैसे आपने देखा होगा, क्लाउड किचन बनाते हैं और फिर स्पोक एरियाज बनाते हैं जहां से डिलीवरीज होती हैं। तो हब एंड स्पोक एक एरिया है जिसको पूरा ही कैप्चर किया जाता है 4-5 सेगमेंट से। मास्टर फ्रेंचाइज जो होता है उसमें आपको सिटी, स्टेट, कंट्री राइट्स मिलते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट कंट्रोल दिया जाता है सब फ्रेंचाइजीज अपने अंदर बना। सो दैट इज मास्टर फ्रेंचाइज। इफ एनीवन हैज एनी डाउट, प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। ब्रॉडली 2 तरीके से फ्रेंचाइजिंग होती है, प्रोडक्ट बेस्ड फ्रेंचाइज, सर्विस बेस्ड फ्रेंचाइज। प्रोडक्ट बेस्ड में अगर एग्जांपल दूं, अपैरल, फुटवेयर, बहुत सारे ब्रांड्स अभी एग्जांपल्स आप लोगों ने दिए हैं बाटा के और अपैरल में वीवा के। सो इसके सेगमेंट में ये होता है, मोर ओवर प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं आउटराइट बेसिस पे। एग्जांपल लीजिए, आप वीवा की फ्रेंचाइज आपने ओपन की है, आपने इंटीरियर पे एक्सपेंस किया है, देन यू हैव टू परचेज द स्टॉक आउटराइट बेसिस। फ्रेंचाइजी फीस नहीं होती है, रॉयल्टीज नहीं चार्ज होती है, जो स्टॉक आप देते हैं वो रिपीटेशन में प्रोक्योरमेंट होती है मंथ। मेजर पेन एरिया होता है स्टॉक करेक्शन। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड्स हैं एंड ऑफ सेल्स ऑफर लगाते हैं, अप्रोक्सीमेटली अगस्त में या दिसंबर में लगाते हैं 70%, 80%। ये स्टॉक करेक्शन किया जाता है क्योंकि दैट्स इन्वेंट्री इज अ मेजर पेन एरिया विद प्रोडक्ट बेस्ड फ्रेंचाइज। सो इसका सब्स्टिट्यूट यही है, जो एंड ऑफ सेल्स ऑफर्स में वो प्रोडक्ट को निकाला जाता है। सर्विस बेस्ड फ्रेंचाइज में टेक्निकल नो हाउ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल आप किसी भी एजुकेशन सेगमेंट का ले लीजिए, इंस्टीट्यूट्स का ले लीजिए, जैसे आकाश इंस्टीट्यूट था, उसकी फ्रेंचाइजी में फ्रेंचाइजी फीस इज द हायर साइड। कोई भी आउटराइट स्टॉक नहीं सप्लाई होता है, रॉयल्टीज चार्ज की जाती है मंथ ऑन मंथ। रॉ मटेरियल्स जिसमें उनके करिकुलम्स, कोर्स एंड बुक्स, अदर सेगमेंट्स बीइंग प्रोवाइडेड। मेजर जो सेगमेंट होता है इसमें टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निकल नो हाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सप्लाई चेन ऑफ रॉ मटेरियल्स हैज टू बी प्रोवाइडेड, जो इनका मेजर पेन एरिया होता है। So I hope product and service-based franchise is clear to you all. Please do mention yes or no in the chat box so that I can understand you're not sleeping. Okay, great. So can anyone tell me, help me understand the expansion models of franchisee? Someone was mentioning before as well. Expansion models कौन-कौन से होते हैं franchising के? Okay. Yafofo, Foco, Bot, Fico, yes. Okay. फोफो मोस्टली यूज होता है, सबसे ज्यादा फ्रेंचाइज सेगमेंट में फोफो मॉडल यूज होता है। फोफो मॉडल इज फ्रेंचाइज ओन, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। अ पर्सन जिसने बिल्ड किया है और वही ऑपरेट कर रहा है। इन फोफो मॉडल, इफ यू आर टेकिंग एनी फ्रेंचाइजी, प्लीज मेक श्योर कि आप अपना टाइम और एनर्जी उस सेगमेंट में डाल सकते हैं, तभी आप फोफो मॉडल में जाइए। इसमें आपका टाइम, एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपने फ्रेंचाइजी ली है, ऑपरेट आपको खुद करना है अपने एरिया में। So FOFO, one person wanted to do the business, start the business, wanted to put his time and energy, then go with FOFO model. FOCO model is altogether franchise own करता है कि ठीक है, एक स्पेस है वहां पे मैंने बना के दे दिया, ऑपरेट कंपनी कर लेगी, कंपनी मुझे मिनिमम गारंटी या रेवेन्यू शेयर दे देगी मंथली या क्वार्टरली, जैसे भी डिफाइन होता है दोनों के बीच में। फीको इज समथिंग कि मेरे पास पैसा है, मैंने एक ब्रांड को दिया, सपोज 50 लाख रुपए मेरे पास है, मैंने 50 लाख भी ब्रांड को दिया, ब्रांड ने उस 50 लाख से कहीं पे इन्वेस्ट करके कोई अपनी शॉप बनाई और ऑपरेट किया। मुझे उसने बोला है कि जो भी आपने पैसा दिया है आपको मिनिमम रिटर्न आएगा उसका, मेरा कोई से नहीं है उस आउटलेट पे।
It's just that I've invested in and I will get a return of investment. So that is FICO. Bought is build, operate, transfer. Lenskart has started a franchising. The franchisee सेगमेंट लोग नहीं खरीदते थे उस टाइम पे। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अपना स्टोर बनाया, उसको ऑपरेट किया, 6 महीने चलाने के बाद उसे फ्रेंचाइजी को ट्रांसफर किया। सो बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। सेम क्रोमा हैज आल्सो डन इन कोविड टाइम। इंडस्ट्री इनसाइट्स अगर मैं बात करती हूँ रिटेल सेगमेंट की में, अगर आप जाना चाहते हो तो उसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है, मॉडरेट आरओआई होता है इसका। अगर मैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 2.5 से 3 साल मिनिमम लगते हैं। एजुकेशन स्टेबल डिमांड है, वेरिएबल आरओआई है, मार्केट सैचुरेशन और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एफएनबी में ग्रोथ पोटेंशियल तो है बट ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और वेस्टेज मैनेजमेंट इज वन ऑफ द सेगमेंट दैट एंटरप्रेन्योर शुड लुक फॉरवर्ड। हेल्थ एंड फिटनेस में डिमांड तो बहुत ज्यादा है पर कस्टमर एप्रिशिएशन बहुत ज्यादा है दोनों साइड में। सर्विस इंडस्ट्री डिपेंड करता है कौन सी सर्विस इंडस्ट्री है। मोर ओवर सर्विस इंडस्ट्री का जो सेगमेंट है वो स्टेडली डिमांड होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है, रिकरिंग रेवेन्यू आता रहता है। हॉस्पिटैलिटी इज एक्सपीरियंस ड्रिवन एंड सीजनल बिजनेस। So whichever industry you're thinking about it, think, understand, thoroughly research, and then for it. So they are key consideration हमको सोच समझना चाहिए किसी भी फ्रेंचाइजी को लेने से पहले। So as an investor, आप लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है किसी भी फ्रेंचाइजी को लेने से पहले, क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। Everyone, please mention your thoughts. इन्वेस्टमेंट, या श्योर आदे जी, इन्वेस्टमेंट आपको समझना जरूरी है। आरओआई, इस कंपनी फ्रॉडलेंट, या ऑब्वियसली आप कंपनी को थॉरोली रिसर्च करेंगे। एफर्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट एंड रेवेन्यू, या ब्रांड प्रपोजिशन, एब्सोल्युटली राइट। एनी अदर थॉट एनीवन हैज? Contract, yes, you have to read through the contract. What else? Okay, so I'll just give you my understanding. Company, share market, reputation, yeah. Initial investment and fees. सपोज आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करी हो पैसा। अब आपके पास लिक्विड कैपिटल नहीं है चलाने। सो दैट इज वन ऑफ द सेगमेंट कि दैट इज नॉट अ राइट प्रपोजिशन फॉर यू। अगर आपके पास 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो आप 5 लाख के इन्वेस्टमेंट वाली फ्रेंचाइजी पे इन्वेस्ट कीजिए। 5 लाख रुपए आप अपने पास रखिए उसे चलाने के लिए। ब्रांड रेपुटेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड ब्रांड रेपुटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Support and training being provided by the brand, you have to understand that. Other franchisee performance is also very important. आपके पर्टिकुलर मार्केट में क्या डिमांड है उस प्रोडक्ट या सर्विस की जिसको आप लेके आना चाह रहे हैं, और लोकेशन जो आप फाइनल कर रहे हैं वो लोकेशन कितनी प्रोमिनेंट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। यू हैव टू फिगर आउट दैट वेरी वेल। फ्रेंचाइज एग्रीमेंट टर्म्स यू शुड स्टडी थॉरोली। रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स जो भी अगर कोई भी फ्रेंचाइजर लगा रहा है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है फ्रेंचाइजर वो चीजें वो फेलियर देख चुका होता है, वो नहीं चाहता मेरी फ्रेंचाइजी करे, तो इसलिए वो उन चीजों को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो यू हैव टू डिस्कस एंड अंडरस्टैंड लीगल ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। पर्सनल कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं तो आपका पर्सनल कमिटमेंट बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर डोंट गो फॉर दैट फोफो मॉडल ऑफ फ्रेंचाइज। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या प्रोजेक्शंस हैं, क्या ग्राफ है 3 years 5 years को, so that you can evaluate your ROI and you can understand what is the vision that you're carrying ahead that brand. So these are the segments moreover. But mostly हमने ये भी देखा है कि फ्रेंचाइजी फेल हो जाती। फ्रेंचाइजी फेल होने के जो रीजंस होते हैं, कॉमन रीजंस होते हैं, इट्स बोथ साइड। ऑटोमेटिक सक्सेस किसी भी चीज में नहीं होता विदाउट एफर्ट। इफ यू आर टेकिंग अ फ्रेंचाइज इन योर एरिया देन यू आर द मास्टर ऑफ दैट एरिया। अगर आप उस एरिया में अपने आप को
नहीं पेनिट्रेट करेंगे. लाइक आई हैव गिवन एग्जांपल, अगर मैकडोनल्ड कहीं पे खुला है और मैकडोनल्ड का पता ही नहीं है कि वो खुला है, तो मैकडोनल्ड भी फेल हो जाएगा. लैक ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम फ्रेंचाइजी. अगर आपका इन्वॉल्वमेंट अपनी फ्रेंचाइजी में नहीं होगा, फ्रेंचाइज या कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता. टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी इज रिक्वायर्ड. Location choice is one of the segment that you have to figure out very well. Local marketing and customer acquisition as a franchisee owner is your responsibility, or as a business owner your responsibility. अपने एरिया में पेनिट्रेट करना आपकी जिम्मेदारी. Not leveraging support from franchisor is one of the segment that you have to see, you have to understand, and you have to look forward for that. फ्रेंचाइजी अगर आप इन्वेस्ट टाइम और एनर्जी नहीं कर सकते हैं तो आप फ्रेंचाइजी मत लीजिए, फिर यू बिकम ओनली एन इन्वेस्टर. पैसिव इनकम देख रहे हैं विदाउट एफर्ट, डोंट गो फॉर फोफो मॉडल. अगर आप किसी भी नेटवर्किंग या ब्रांड बिल्डिंग में नहीं फोकस है, आपको सिर्फ सक्सेस पैसा चाहिए, दैट्स इट, तो प्लीज गो फॉर फीको मॉडल. दैट इज वन ऑफ द सेगमेंट बेस्ट फॉर यू. केएफसी आउटलेट ने भी इंडिया में स्ट्रगल किया था, हाई रेंटल्स कॉस्ट उनकी हो रही थी और लोकली अडेप्ट नहीं हो पा रहे थे उनके मेन्यू. सो एज अ कंपनी उन्होंने भी चेंजेस किए थे. सो बड़े से बड़ा ब्रांड नहीं चल पाएगा अगर लोकली जो पर्सन उस चीज को चला रहा है वो अपने आप को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा उस एरिया में. सो एज अ franchisee seekers, my suggestion for you is, if you're going for to start any of the business or take a franchise, please put your head and effort into it. And growth mantra अगर मैं बात करूं, patience, networking and customer acquisition is a main growth mantra for any business to, not franchisee only, any business to. पेशेंस, आपको टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंट एफर्ट करनी पड़ेगी किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए. नेटवर्किंग आपको बढ़ानी पड़ेगी, अपने लोकल एरिया में जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्या मार्केट करना पड़ेगा, दैट दिस ब्रांड इज हियर. कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फ्रेंचाइजी. Franchisee role is major. You have to focus on sales, customer experience, local engagement. Franchisor is already helping you to build up the training and backend support. Franchisor will give you all the support from the background, but at the front phase पे आपको ही play करना पड़ेगा. You are the face of that brand. So there are many examples. Tanishq is one of the examples जिसने बहुत ही strong brand create किया, जिसकी फ्रेंचाइजी ने बहुत आगे बढ़ के काम किया. कस्टमर रिलेशनशिप बनाना फ्रेंचाइजी का ही मेन कोर एरिया होता है. पर्सनलाइज टच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर्स. सो देयर आर फ्यू टिप्स फ्रॉम माय साइड फॉर ऑल द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है हमारे साथ. जो भी फ्रेंचाइजी या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप मार्केट को आइडेंटिफाई कीजिए, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या गैप फुलफिल कर रहे हैं. कस्टमर एक्सपीरियंस आपके शुरू करने से पहले क्या है, आपके शुरू करने के बाद क्या है, वो आपको इजीली अंडरस्टैंड करना जरूरी है. एंड टेक्नोलॉजी का लेवरेज उठाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट विल स्ट्रीमलाइन योर ऑपरेशन, enhance your customer experience and scale your business. So you have to work on 3 parameters moreover, and you'll be getting a successful business. So there is a brand. My colleague Praveen will be discussing with you about that brand. But prior to that, OP, I would request अगर आप वीडियो प्ले कर दें so that people are waiting for the business opportunity, वो देख पाए. Thank you everyone for your time. Very good evening, everyone. My name is Praveen, and I'm from Manubhai Service Expert Franchisee Team. So we will start from what is Manubhai. So it is a technology-driven platform to cater the different type of services. It is a one-stop solution basically for the services. Our first category is home appliances repair services, which includes the repairing of all the home appliances like AC, RO, geyser, fridge, TV, and many more. Second one is handyman services, which includes the services of electrician, painter, carpenter, plumber, right? And third one is home care services, which includes the cleaning related thing like sofa cleaning, washroom cleaning, water tank cleaning, and pest control. So it is like we are serving the customers like a quick commerce. You guys have already have a clear picture of quick commerce. They are delivering the things
in a jiffy, like 10 minutes, 19 minutes kind of thing. And Domino's is doing the same thing, like they are delivering the pizza in 30 minutes, and we are having the same concept to reach the customer's place in 30 minutes. So हमारे जो भी टेक्नीशियंस हैं, प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑन ग्राउंड पे हैं, वो 30 मिनट्स में कस्टमर के घर पे रीच करते हैं. दिस इज आवर यूनिक सेलिंग पॉइंट. Now we will understand the market of consumer durables and home appliances. So 1.3 billion plus appliances are sold in India every year. So this is a big number. इतने appliances हर एक साल इंडिया में सोल्ड होते हैं, जिसमें होम अप्लायंसेस होते हैं, लार्ज अप्लायंसेस होते हैं और किचन अप्लायंसेस होते हैं. 3.9 billion plus existing appliances in the market today. अभी इतने मार्केट में है appliances, और हर एक घर में लगभग 10 से ज्यादा लाइक अप्लायंसेस होते हैं. So this is the fact check कि Indian appliances and consumer electronic industry stood at 9.84 US billion in 2021, and it is expected to more than double to reach 21.18 billion by 2025. So we are in 2025. ये मार्केट कितना बड़ा है, बेसिकली इस पर्टिकुलर फैक्ट चेक से हमने यही शो करने की कोशिश करी है. Now the repair market, we will understand the repair market. इसमें क्या होता है, कितना बड़ा मार्केट है, and what scope it has, right? So 90% consumers go for the third party service providers for out of warranty appliances. जब आपके home appliances आउट ऑफ वारंटी होते हैं, तो अभी क्या 90% कस्टमर्स जो है वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाते हैं. ठीक है, जिसमें इंस्टॉलेशन एंड डेमो है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सर्विसेज है, एंड रिपेयरिंग सर्विसेज है. 99% consumers take services from OEM during the warranty of appliances. So हम जब भी होम अप्लायंसेस खरीदते हैं, कोई भी अप्लायंसेस खरीदते हैं, so जब इन वारंटी होता है तो we all prefer कि जहां से हमने परचेज किया है हम वहीं से जो वारंटी की सर्विसेज हैं वो लें. The electronic repair market in India can help generate over 5 million direct jobs with a potential to generate revenue of $20 billion per annum. So again, it is a fact check कि इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर मार्केट इंडिया में कितना बड़ा जॉब क्रिएट कर रहा है, उसी से आप समझ सकते हैं कि ये मार्केट कितना बड़ा है. Now, in this particular slide, we will understand the product categories. So there are three categories. Earlier also I said, like large appliances, home appliances and kitchen appliances. अब large appliances में क्या क्या आते हैं? AC है, आपका washing machine है, refrigerator है, television है, microwave and water purifier. Home appliances में dishwasher, air cooler, geyser, air purifier, fans. एंड किचन अप्लायंसेस में आपके चिमनी हो गया, हॉब है, एयर फ्रायर है, और अदर स्मॉल अप्लायंसेस हैं लाइक मिक्सर है, ग्राइंडर है. सो दीज आर दी प्रोडक्ट कैटेगरीज. अप्लायंसेस सर्विसेज में कंज्यूमर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमने समझा. सो इससे हमें फाइंड आउट क्या हुआ, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम समझेंगे. इस पर्टिकुलर मार्केट में इनकंसिस्टेंट क्वालिटी है. लाइक हमने समझा कि जब तक आपका टेक्नीशियंस प्रॉपर ट्रेंड नहीं होगा, ऑब्वियसली वो जो भी रिपेयरिंग करेंगे वो इनएफेक्टिव होगा, राइट. इसके अलावा कॉस्ट, हिडन कॉस्ट की भी बात हमने समझी. सरप्राइज फीस कभी कभी अराइव हो जाते हैं, टेक्नीशियन के आने के बाद हमें पता लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगने थे. सर्विस डिलेज है, देयर इज नो फिक्स्ड टर्न अराउंड टाइम कि जिसमें थर्ड सर्विस प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स आपके घर पे पहुंचे. अनरिलायबल प्रोवाइडर्स है, बहुत ही मुश्किल होता है जब इस तरीके के सर्विसेज के लिए आप मार्केट में सर्च आउट करते हैं. सो काफी मुश्किल है रिलायबल टेक्नीशियंस मिल पाना. पुअर सपोर्ट होता है, स्लो रिस्पॉन्स होता है. लेट्स से आपके यहाँ पे कोई टेक्नीशियन आए, उन्होंने एसी रिपेयर करा, फिर वही सेम इशू आया, सो माइट बी वो कॉल ना उठाए आपके एक बार करने से, because they are not bound to take your calls every time, right? इसके अलावा लिमिटेड वारंटीज होती हैं, क्लेम करना डिफिकल्ट होता है. जियोग्राफिक गैप्स भी हमने देखे. रूरल एरियाज में ऐसे एरियाज अभी इंडिया में बहुत ढेर सारे हैं जहां पे इस तरीके की सर्विसेज के लिए कवरेज एरिया नहीं है. लाइक दे हैव टू ट्रेवल 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर शहर में जाके फिर वो चीजें बताते हैं. देन काफी लंबा प्रोसेस है.
इसके अलावा मटेरियल और पार्ट्स के भी इश्यूज हैं, जेन्युइन पार्ट्स मिलना काफी मुश्किल होता है, फ्रॉड के रिस्क भी उतने ही है। सो इन पर्टिकुलर चीजों से हमारी जो लर्निंग रही है इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम वो समझेंगे। लो लीड टू लो कन्वर्जन, ऑब्वियसली जब रिलायबल नहीं होगा, कोई ट्रस्ट वर्दी टेक्नीशियन नहीं होगा, इनफेक्टिव क्वालिटी होगी, सो जो कन्वर्जन रेशियो होगा वो बहुत कम होता है। एक्सटेंडेड टर्न अराउंड टाइम होता है। टर्न अराउंड टाइम की अगर मैं बात करूं तो आज आपने कॉल किया, माइट भी वो आज आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, दे आर नॉट बाउंड की इतने ही देर में वो आएंगे। इससे क्या नुकसान हुआ? कस्टमर रिटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट सम वन न्यू, कि कोई नया टेक्नीशियन मिल जाए जो कि रिलायबल हो। हाई एट्रिशन रेट होता है, इनकंसिस्टेंट प्रोफेशनल परफॉर्मेंस होता है, और लिमिटेड सर्विस ऑफरिंग्स होती हैं। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि जैसे कोई एसी एसी रिपेयरिंग वाला है, सो एसी ही स्पेसिफिकली रिपेयर करेगा। सो इसमें क्या होता है कि जितने हमारे यहाँ पे अप्लायंसेस हैं उसके लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्रिएट होता है, राइट। सो लिमिटेड सर्विस ऑफरिंग्स भी एक ऐसी चीज रही जो हमारी लर्निंग का पार्ट रहा। अब हमने टेक्नोलॉजी ड्रिवन हाइपर लोकल क्विक सर्विस सेंटर जब ओपन किया, सो इससे लेवरेज क्या हुआ? इससे ये हुआ कि हाई कन्वर्जन हुआ, प्रॉम्प्ट अवेलेबिलिटी हो गई, बिकॉज हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, एज आई सेड कि वी आर बाउंड टू लाइक रीच द कस्टमर्स प्लेस इन 30 मिनट्स, राइट। कस्टमर लॉयल्टी उससे बिल्ड हुई, लॉन्ग रिलेशनशिप बने हमारे, और एट्रिशन रेट जो है वो कम हुआ, क्योंकि हम क्वालिटी और एफिशिएंसी और इसके अलावा टाइम जो है वो भी हम बाउंड है। सो इन तीनों चीजों के कारण एट्रिशन रेट भी काफी कम हुआ। इसके अलावा हमने ऑफरिंग्स जो है डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटेट करी, क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग से। नाउ हमारी शुरुआत कैसे हुई इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम वो समझेंगे। हमने एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके अलावा हमने मार्केट की डिमांड को वैलिडेट किया, सॉरी। सो इनिशिएट किया हमने रेवेन्यू को। इसके अलावा हमने कोर कैटेगरी में ऑपरेशंस स्केल किया, पायलट बैच एग्जीक्यूट किया, न्यू कैटेगरीज हमने ट्राई करा। इसके बाद अभी तक की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव ऑनबोर्डेड 150 प्लस फ्रेंचाइजीज अक्रॉस इंडिया। Now, this is the customer journey that we have simplified through the technology. So, हमारे पास कस्टमर्स किस किस तरीके से आते हैं, किस किस चैनल के थ्रू आते हैं, वो इस पर्टिकुलर स्लाइड में दिखाया गया है। एक तो हमारा एप्लीकेशन है मनु भाई सर्विस एक्सपर्ट, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा 24/7 कॉल सेंटर अवेलेबल है। हमारे एजेंट्स, दे आर अलाइंड फॉर दैट पर्पस टू टेक द कॉल्स व्हेनेवर कस्टमर्स आर कॉलिंग अस। सो आप कभी भी हमें कॉल करेंगे, 24/7 वी आर अवेलेबल। Apart from this, we are having our official website, that is www.manubhai.com. So ये 3 वर्टिकल के थ्रू हमारे पास कस्टमर आते हैं। जब भी रिक्वेस्ट आती है, इसके बाद वो रिक्वेस्ट जाती है हमारी टेक्नीशियन के ऐप पे, फिर वो पहुंचते हैं, अपना काम खत्म करते हैं, पेमेंट कर लेते हैं, और कस्टमर फीडबैक टीम और टेक द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स। सो ये हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू सिंप्लीफाई जो कस्टमर की जर्नी की है, इसमें वो बताया गया है। सो हमें दूसरे मार्केट प्लेयर से क्या डिफरेंट बनाता है, हमें क्या अलग है, और अभी तक हमने क्या किया हुआ है, वो सारी चीजें इसमें समझेंगे। 100 प्लस सिटीज वी हैव कवर्ड, इनफैक्ट 150 प्लस सिटीज, 10K plus industry keywords ranked on search engine. So the people who are from the SEO background वो समझ सकते हैं 10,000 plus industry keywords रैंक कराना काफी मुश्किल होता है इस पर्टिकुलर सर्विस इंडस्ट्री की। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, जो वेबसाइट डोमेन रेटिंग है विच इज 35, विच इज अगेन स्ट्रॉन्ग, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन होम अप्लायंसेस इंडस्ट्री। अगर मैं अपने वेबसाइट की बात करूं, सो मंथली जो इम्प्रेशंस आते हैं हमारे वेबसाइट पे वो 10 मिलियन प्लस है, डिजिटल वेब एसेट्स 10 प्लस है, और जो डेली रिक्वेस्ट हमें आती है वो 2000 प्लस रिक्वेस्ट हमें रिसीव होती है। सो दिस इज द जर्नी ऑफ 365 डेज व्हाट वी डिड टिल नाउ। हमने 150 प्लस सिटीज कवर किया हुआ है, जिसमें मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं कि अभी हमारी अवेलेबिलिटी कहाँ पे है, अभी हम कहाँ पे अवेलेबल हैं अक्रॉस इंडिया, एंड स्टिल वी आर काउंटिंग। These are the few glimpses of the inauguration event. जब भी हमारा इनॉग्रेशन होता है, वी ऑलवेज ट्राई कि वो भव्य हो, चीजें विजिबल हो, किसी भी शहर में हम जाएं, सो ऑब्वियसली लोगों में एक बज क्रिएट हो,
लोगों को हम अवेयर कर सकें आने से पहले और इनॉग्रेशन के टाइम पे कि व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कैटेगरी, राइट। सो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने इनॉग्रेशन इवेंट के कुछ पिक्चर्स हैं जो हमने डाला हुआ है। आप देख सकते हैं राजस्थान में महंत बालकनाथ योगी जी आए थे। इसके अलावा मधु वर्मा जी आए थे जो कि एमएलए हैं इंदौर में। सो इस तरीके के जो इवेंट होते हैं हम ऑर्गेनाइज करते हैं। Same, the inauguration event glimpses here also we have captured. So you guys can have a look. So what we are offering through our quick service center. Okay. So we provide repairs of all type of home appliances. As I said, जितने भी home appliances है घर में सारे brand के we are catering the repairing, servicing and installation of that home appliances. We are offering comprehensive home services as well. Home services includes the cleaning related thing like sofa cleaning, washroom cleaning, water tank cleaning, pest control and others, right? Retail water purifiers and other white label products. So we are also into the sale of RO water purifier, and we are having our own white label product, that is Dr. Fresh water purifier, and we are having the website as well, that is www.drfresh.in. You guys can also explore that particular website. And we are offering extended warranties, and we are like taking the AMCs for all the appliances. So AMCs भी एक part है जो कि we are catering. Now the quick service center overview. 4,000 households we are covering from each quick service center, and उनका जो range होता है वो 3 to 4 kilometers का होता है. जो कस्टमर्स आते हैं वो ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन लाइक वेबसाइट है, हमारा एप्लीकेशन है। इसके अलावा वॉकिंग कस्टमर्स भी होते हैं, फुटफॉल भी होता है स्टोर में, डायरेक्टली भी आकर के वो सर्विस रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्विक सर्विस सेंटर से वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट दैट इज वाटर प्यूरिफायर एंड सर्विस डिलीवरीज वी आर गिविंग। वन क्विक सर्विस सेंटर सेटअप इन्वेस्टमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 10 लाख, जो कि हमारा क्विक सर्विस सेंटर सेटअप करने में पैसा लगता है वो 10 लाख के आसपास है। एवरेज सर्विस रेवेन्यू इज अबाउट 12 लाख पर मंथ पर क्विक सर्विस सेंटर। एवरेज न्यू प्रोडक्ट रेवेन्यू ऑफ 2 लाख पर मंथ पर क्विक सर्विस सेंटर। 800 tickets per month we are catering from one quick service center. Average ticket size is 1500. So average ticket size जो हमारा है वो 1500 रुपीज का है। एंड एवरेज टिकट्स जो कंप्लीट करते हैं हमारे एसोसिएट एक दिन में वो 5 to 6 टिकट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, we are empowering learning with exclusive training centers, both offline and online in prime locations. So in the previous slides, we understood the role and importance of training, right? Ineffective training will lead to ineffective repairing, right? So we are empowering the learning through the training centers that we are having, offline training centers and online training centers. You guys can have a look कि किस तरीके से ट्रेनिंग जो है वो प्रोसेस हम कैटर करते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से कि हम क्या सपोर्ट दे रहे हैं फ्रेंचाइजी को, हमारी फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए। सो सबसे पहले साइट सिलेक्शन एंड बिल्डअप असिस्टेंस हम देते हैं, राइट। सो विजिबिलिटी किसी भी ऑफलाइन स्टोर का होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका बिजनेस चल रहा है, राइट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हैं कि विजिबिलिटी है तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू अचीव द टारगेट्स दैट यू आर थिंकिंग ऑफ, राइट। सो यहाँ पे साइट सिलेक्शन और बिल्डअप असिस्टेंट हमारी साइड से प्रोवाइड किया जाता है। वी आर हैविंग अ प्री लॉन्च टीम डेडिकेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक, हैंड एंड स्पेशलिटी टूल्स, ये सब टूल्स वगैरह भी हमारे साइड से हम प्रोवाइड करते हैं। वी आर हैविंग अ डायरेक्ट टाई अप विद OEM, सो वहां से हम प्रोवाइड करते हैं। मनु भाई प्रोवाइड्स मार्केट इनसाइट्स एंड ट्रेनिंग्स टू हेल्प फ्रेंचाइजीज अंडरस्टैंड देयर ऑडियंस। सो ऑब्वियसली दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक जब भी हम किसी भी शहर में ओपन करना चाहते हैं, सो ऑब्वियसली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर मार्केट में इनसाइट्स क्या है, बिकॉज एवरी सिटी हैज द पर
इनकम कैपिटा डिफरेंटली, राइट? अगर मैं बात करूं दिल्ली में, पर इनकम कैपिटा माइट भी डिफरेंट हो सकता है, बिहार में डिफरेंट हो सकता है, यूपी में डिफरेंट हो सकता है। मार्केट के इनसाइट्स भी समझना जरूरी है कि वहां के लोकल जो मार्केट प्लेयर्स हैं उनका कितना बड़ा ऑडियंस है, क्या वो केटर कर पा रहे हैं सही से। सो ये जो मार्केट इनसाइट्स है वी आर प्रोवाइडिंग टू दी फ्रेंचाइजी स्टोर्स। Dedicated recruitment support help franchisees hire skilled personnel, boosting service quality. So recruitment support we are providing. We are having a dedicated staff for recruitment purpose. So हम recruitment करके training दे करके फिर deploy करते हैं जो भी technicians होते हैं। Comprehensive training programs equip franchisees with essential business management skills. So training programs भी हम कराते हैं। इसके अलावा मनु भाई offers digital marketing support to enhance visibility. So we are enhancing the visibility of the store by giving the support of digital marketing that we are doing across the social platforms like YouTube, Facebook, Instagram, right? So we are doing that part. Advanced technology tools streamline daily operations, ensuring efficiency and scalability. So we are having our CRM portal to track the things that is happening on a daily basis, right? So we are providing these things to the franchisee stores. Organic leads being mapped to the respective franchisee. जो भी हमारे पास leads आती हैं, जो भी हम marketing कर रहे हैं उसके through inquiries आती हैं, queries आती हैं, tickets raise होते हैं. So we are mapping those tickets to the respective franchisees. 24/7 we are available to take calls. The call center support team is aligned for that thing. So we are supporting the franchisees in that way as well. So the magic formula for Manu Bhai franchisee success. So जो भी हमारी फ्रेंचाइजी ले चुके हैं या लेने वाले हैं और गारंटीड सक्सेस चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ कि 5,000 फोन में आप इंस्टॉल करवा लीजिए मन्नू भाई का एप्लीकेशन एंड लेट द मैजिक बिगिन। लाइक वो अपना काम करेगा, राइट? सो द मोर इंस्टॉलेशन विल हैपन, आपका बिजनेस भी उसी तरीके से ग्रो करेगा। सो रेवेन्यू आपका बूस्ट होगा ऑब्वियसली। इस चीज पे आई वुड सजेस्ट द एंटरप्रेन्योर्स जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो हमारे साथ आगे बढ़ते हैं तो वुड सजेस्ट कि मैजिक फॉर्मूला यही है कि आप जितने ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचेंगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपका रेवेन्यू ग्रो होने का। Now we are open to take the questions. I would request all the entrepreneurs, please write your questions in the chat box. So accordingly, we can take the questions and give the answers of them. Okay, so Chiranji is saying, I need Bilaspur Chhattisgarh franchisee. Okay, ठीक है. So are you in touch with anyone from our team? Like पहले से आप किसी के connect में हैं? Guys, I'm dropping my number in the chat box. My name is Praveen Tripathi, right? So you guys can directly call me or you guys can ping me on the WhatsApp. We'll more than happy to assist you guys. I need Greater Noida franchisee. ठीक है हिमालय जी. राधे कुशवाहा, I need a franchisee in Bangalore. Great. I hope I'm able to like convince you guys because I'm seeing the people who are interested. So yeah, Chiranji. Okay. Invited by Gaurav. Okay. So yeah, Gaurav is in our team. So yes, we can schedule a meet and move forward. Yeah. What is investment? So Jitendra ji, as I said, 10 lakh जो setup cost होता है वो होता है। बाइफिकेशन करके अगर मैं बताऊं तो 5 लाख फ्रेंचाइजी फी है, बाकी सेटअप और आपका जो हम स्पेयर पार्ट देते हैं, टूल किट देते हैं एंड वाइट लेबल अपना प्रोडक्ट देते हैं उसका होता है। But I missed many staff in this session. Okay. Many stuff in this session. Okay. ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास recorded videos भी होते हैं, we can share it with you. No need to worry on that part. Ramji, what is the amount distribution to repair staff, franchisee partner and your amount distribution? Okay.
So royalty we are taking is 15% and 85% will go to you. In this 85%, you will have to bear the cost of electricity bill, rent, and the operational cost. Apart from this, the salary of the technicians. Can you are planning to another sessions? Yeah, like we will be continuing the sessions every Friday at 4 p.m. हर फ्राइडे को हम 4 बजे सेशन जो है वो कराते हैं. So yes. Is it a FOCO model? नहीं, ये FOFO model है. Franchisee owned and franchisee operated. So I'm waiting for the more questions. Feel free to ask, guys. I have seen like the session is really very interactive, right? Okay, is there a FOCO model? Not FOCO. We are having another concept like master franchisee. But again, the effort, like it will also require effort from your end. Master franchisee concept we are in FOCO. Yeah. Again, I'm dropping my number, guys. You guys can save my number and ring me directly. Definitely, Radhiji will align a team member for you. So he or she will be taking care of the further things. What is the investment for master franchisee? 20 lakh. So Jitanji, are you in connect with any of our team member? बात चल रही है आपकी? No. Okay. So just above your message, my number is showing. You can save this number and thank me directly. Great. I'm also having your number now. Okay, so I'm saving your number right now ताकि मैं भूल ना जाऊं. जितन जी भी थे. हाँ. अच्छा, गोवा में लेना चाहते हैं आप? Great. So I'm waiting for more questions, guys. Feel free to ask me. Okay. And also, like you guys have many numbers from our team, so you guys can ring to anyone. ठीक है. You have in Goa? No, not now. Like till now we don't have. You will be the first one, I guess. So ठीक है, guys. We are closing this session now, and again we will be meeting with you guys at the same time, like at 4 p.m. On Friday. Yeah. Thank you. Thank you so much, guys, for giving us a precious time. Bye bye. Take care.